Welcomes to you in the lecture number 1 of concepts of electrostatics. In this lecture we will see 12 different concepts of electrostatics. Let us start our first concept. At the start we have 3 boxes of the same mass. First box is neutral, second box is given a positive Q charge, and third box is given a negative charge. We know that electrons is shifted from this box to this box. Electrons has been shifted from this box to this box. Electrons has mass 9.1 cross 10 raised to minus 31 kg. It means when electrons is shifted, it means 9.1 cross 10 raised to minus 31 kg of mass is shifted from this box to this box. It means mass of this positive box has been decreased by a quantity of 9.1 cross 10 raised to minus 31, and mass of this box has been increased 9.1 cross 10 raised to minus 31 kg. So mass of this box has been decreased by this neutral mass, and mass of this box has been increased by this neutral mass by a quantity of the mass of the electron. Next, in our next concepts, we will see this charge is at rest. Charge at rest has only electric field. When charge start moving with a constant velocity, it has both electric field and magnetic field. But when charge moving with variable velocity is not constant, it has electric field, magnetic field, and as well as it radiate energy in the form of electromagnetic radiations. When charge is radiate energy in the form of electromagnetic radiations when it is moving with variable velocities. Next, we know that unit of the charge in SI system coulomb, that is equivalent to ampere and second. But in CGS system में charges has two type of units. First of all, electrostatic unit, and second is electromagnetic unit. Electrostatic unit of charge is state coulomb, and electromagnetic unit of charge is AB coulomb. What is the relation between SI units and CGI units? 1 coulomb is equals to 3 cross 10 raised to power 9 state. 1 coulomb is equals to 3 cross 10 raised to power 9 state coulombs, and 1 coulomb is equals to 1 by 10th of AB coulomb. 1 coulomb is equals to 1 by 10th of AB coulomb. In our next concepts, as we have known that when body is moving with the velocity v approaches to velocity of light, say is its mass increased, but this is not case with the charge. Charge is independent to the velocity of the body. Body की velocity बढ़ने से mass तो बढ़ सकता है, but its charge remains constant. That is, charge independent to velocity of the body. Charge change नहीं होता. Next, we have two spheres. One is a conducting sphere and other is a dielectric sphere. Both is given a positive Q charges, and in dielectric sphere charges resides remain in the outer surface and as well as inside the body. But in conducting sphere, charges only shifted toward the outer sphere. No of the charge is shifted. No charge is remain inside the body. कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो उसके एक बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, ओनली इसकी सरफेस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. लेकिन डायलेक्ट्रिक स्फीयर में चार्ज जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर भी होता है, उसकी इनर बॉडी के ऊपर भी होता है. लिहाजा कंडक्टिंग स्फीयर चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे हमारा सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. और अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एक एज बना दें, अगर शार्प एज बना दें, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादातर शार्प एजेस के ऊपर स्टोर हो जाता है. द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट चार्ज डेंसिटी, वी नो दैट चार्ज ओवर एरिया होता है. एरिया दैट इज़ 4πr². जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी. अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा स्फीयर बनाएं और चेक करें कर्व पाथ के अंदर, यहाँ पे छोटा सा रेडियस बनेगा जहाँ पे रेडियस कम है, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी. और यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो अगर हमारे पास इतना बड़ा रेडियस बनता है तो रेडियस इतना बड़ा बनेगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी. जहाँ पे रेडियस छोटा बनेगा वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट वी विल सी दिस कॉन्सेप्ट. इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव क्यू चार्ज वाला रिंग, इफ़ वी हैव ए रिंग ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड नेगेटिव क्यू चार्ज इज एट दिस पोजिशन x. अगर हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज का एक रिंग हो और नेगेटिव क्यू चार्ज किसी x डिस्टेंस पर रखा हुआ हो, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला एक रिंग हो, नेगेटिव क्यू चार्ज किसी x डिस्टेंस पर रखा हो, तो ये नेगेटिव क्यू चार्ज
पॉजिटिव क्यू चार्ज वाले रिंग की तरफ आएगा, इसके सेंटर की तरफ, और सेंटर से आगे की तरफ मूव करेगा और फिर बैकवर्ड मूव करेगा, और इस तरह इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। हमें पता होना चाहिए एक पॉजिटिव क्यू चार्ज का एक सिस्टम और नेगेटिव क्यू चार्ज का एक सिस्टम हो तो उनमें मोशन कैसी होगी, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एट द सेंटर फोर्स इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इस चार्ज रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस चार्ज रिंग के सेंटर में फोर्स जीरो होगी। जैसे ही चार्ज मूव करके आएगा और यहाँ पे फोर्स जीरो होगी, इनर्शिया की वजह से कोई चार्ज यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, चार्ज आगे मूव करेगा, फिर इसके बैकवर्ड में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कूलम्स लॉ। Coulomb's law is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर, दैट इज इन एसएस सिस्टम में फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर। बट इन सीजीएस सिस्टम द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड फोर्स इज मेजर्ड इन डाइम्स। Next, epsilon naught, it has value 8.85 cross 10 raised to minus 12. Its unit is a coulomb square over Newton meter square, but it is equivalent to farad over meter. In our next basic concepts, we have two pendulums. Same pendulum है, दोनों की balls पॉजिटिव क्यू चार्ज वाली हैं। दो पेंडुलम है, दोनों की बॉल्स पॉजिटिव क्यू चार्ज वाली बॉल्स हैं, और इन पेंडुलम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। एक पेंडुलम इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, एक पेंडुलम में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। अब हमें चेक करना है कि किस में टाइम पीरियड बढ़ेगा, किस में टाइम पीरियड कम रहेगा, किस में टाइम पीरियड डिक्रीज़ करेगा, किस में इंक्रीज़ करेगा। ये चीज़ चेक करते हैं हम लोग। देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करवा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी को, चार्ज बॉडी को एक्सेलरेट करवाएगा और उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। F इज इक्वल्स टू क्यू एंड ई, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स, एंड F इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई ओवर एम, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इट मीन्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। जिस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसी डायरेक्शन में ए पैदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, जो बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो अपवर्ड है। दो वेक्टर्स जो एंटी पैरेलल हों, दो वेक्टर जो एंटी पैरेलल हों तो उनका रिजल्ट करने के लिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं। इट मीन जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगा दैट इज इक्वल्स टू जी माइनस ए। जी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो जी माइनस ए। जी डैश जो है वो डिक्रीज हो चुका है, इट मीन्स जी डिक्रीज हो चुका है। टाइम पीरियड हैज़ इनवर्स रिलेशन विद जी, वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू 2 pi under L over G. When G decreased, so time period has been increased when electric field is upward directions में. If electric field is downward directions में, external acceleration is also downward direction से, G is downward direction से, A and G are sum, that is G prime. G prime has been increased by quantity of A. It means G prime is greater than G and G has inverse relation with the time period, so time period decreased. जब G आपका बढ़ता है time period decrease हो जाता है according to formula. नेक्स्ट, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में कर देते हैं देन टाइम पीरियड आल्सो यही केस, हमारा टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, जी इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कंजर्वेटिव फील्ड है? अगर चार्ज पार्टिकल इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन डिफरेंट पाथ्स, फ्रॉम पाथ 1 एंड फ्रॉम पाथ 2 एंड फ्रॉम पाथ 3, एंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जस्ट यही कंडीशन है कि वर्क 1 फ्रॉम वर्क 2 वर्क 3 ये तीनों वर्क्स इक्वल होने चाहिए। ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। नेक्स्ट वी सी दैट two spheres, inner sphere and outer sphere. If inner sphere has a positive q charge, outer sphere is neutral, and if we join this inner sphere by conducting wire and all of the charge is shifted from inner sphere to the outer sphere. तो आप लोग ये याद रखोगे, अगर इनर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज हो, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए आउटर स्फीयर के साथ तो वो पॉजिटिव चार्ज आउटर स्फीयर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स है, अगर नेगेटिव चार्ज प्लेट्स को ग्राउंड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्लेट से निकल के ग्राउंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव प्लेट से शिफ्ट होकर ग्राउंड में चले जाते हैं, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स को ग्राउंड के साथ अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से निकल के पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। इस तरीके से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।